Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are fine and enjoying this class, English class. So I welcome you. In today's class, I have come with a new topic, reported speech part 2. So we will be doing part 2 of reported speech right now. So we had been doing reported speech, okay? So today is the part 2. In reported speech, we have been talking about direct and indirect speech. So we will be having much explanation on this topic, direct and indirect speech of reported speech, okay? Now you see, my dear students, basic rules of speech and conversion. So I will be teaching you right now the rules of speech and conversion, how you can convert from direct to indirect speech. We will be learning today, okay? Means what are the characteristics of direct speech and indirect speech, what we must do in case of direct speech and indirect speech. So we will be learning the basic rules of speech and conversion, okay? How we can convert speeches, okay? You see, first of all, I will be talking about direct speech here. In the case of direct speech, put within double quotes or double inverted commas. In case of direct speech, the words spoken by the speaker, the actual words spoken by the speaker, the actual words spoken by the speaker, the original words spoken by the speaker should be kept within inverted commas. Inverted commas means speech marks. उसके speech marks भी बोलते हैं. So, and that should be put within double speech marks. Okay? Separate the reporting verb from the direct speech by a comma. We can separate the reporting verb. Reporting verb को अलग करना है from the direct speech. Direct speech से reporting verb को अलग करना है. कैसे? By a comma. Direct, you see here, reporting verb को direct speech से comma से अलग करना है. रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में बताया था मैंने, एक बार फिर बता रहा हूं. देखिए यहां, he said I will go to the market. See here, I will go to the market. Speech marks close. ये देखो सेंटेंस को देखो, सेपरेट द रिपोर्टिंग वर्ब फ्रॉम द डायरेक्ट स्पीच बाय ए कॉमा. ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको अलग कर लिया गया है कॉमा देकर, ठीक है, इसे अलग कर लिया है. सेपरेट द रिपोर्टिंग वर्ब फ्रॉम द डायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच क्या है? ये है, ये क्या हुआ? डायरेक्ट स्पीच. द वर्ड्स, एक्चुअल वर्ड्स स्पोकन बाय द पर्सन, उससे अलग कर लिया गया है रिपोर्टिंग वर्ब को कॉमा से. तो ही सेड क्या है? ही सेड क्या है? मैंने बताया था रिपोर्टिंग क्लॉज, आरसी, ये मैंने बताया था ना, ये पूरा. और सेड क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है, ओके. और ये क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच, सॉरी, RS.
क्लियर? फिर से मैं याद दिला दिया, उम्मीद है कि अब गलती नहीं होगी, अब तुम याद रखोगे। ओके, नाउ यू सी, first put within double quotes or double inverted commas, separate the reporting verb. The second rule is to separate the reporting verb from the direct speech. रिपोर्टिंग वर्ब को अलग कर लिए डायरेक्ट स्पीच से, उसमें नहीं मिलाए हैं और कॉमा इधर लगा दिए हैं। इन केस ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच, और इन केस ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? वो तो डायरेक्ट स्पीच के बारे में बता दिया मैंने। अब इनडायरेक्ट स्पीच में देखो, बिगिन द फर्स्ट वर्ड इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमास with capital letter. In the case of direct speech है, ये सॉरी, ये गलती से इनडायरेक्ट हो गया है, ये डायरेक्ट स्पीच का ही बात है। बिगिन द फर्स्ट वर्ड इनसाइड इन्वर्टेड कॉमास विद कैपिटल लेटर। फर्स्ट वर्ड जो हम कैपिटल लेटर शुरू किए हैं, देखो यहां इन्वर्टेड कॉमा में जो फर्स्ट वर्ड है ना, ये कैपिटल लेटर शुरू करना है, ठीक है, ये रूल है। और फिर फुल स्टॉप देकर बंद कर देना है। अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क देकर बंद कर देना है इन्वर्टेड कॉमा से, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ यू सी इनडायरेक्ट स्पीच, वो तो मैंने डायरेक्ट स्पीच का बता दिया, 3 रूल्स है, 3 रूल्स है। अब देखो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करना है, ध्यान से देखना बेटा। डू नॉट यूज इन्वर्टेड कॉमास इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के बारे में बता दिया, स्पीच मार्क्स में रखना है, इन्वर्टेड कॉमास में रखना है, जो स्पीकर जो बात कहा है, हाँ, द ओरिजिनल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर शुड बी केप्ट इन इन्वर्टेड कॉमास। और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा लगा के सेपरेट कर देना है, ठीक है, ये बता दिया हमने। लेकिन इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच यू हैव टू रिमूव द इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव कर देना है, उसको यूज नहीं करना है। डू नॉट यूज इन्वर्टेड कॉमास, स्पीच मार्क्स को यूज नहीं करना है। ये दो स्पीच मार्क्स है, इसको यूज नहीं करना है, ठीक है। रिमूव द कॉमा सेपरेटिंग द रिपोर्टिंग वर्ब फ्रॉम द डायरेक्ट स्पीच, कॉमा को भी हटा देना है। रिमूव द कॉमा सेपरेटिंग द रिपोर्टिंग वर्ब, जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके बाद जो कॉमा लगा हुआ है ना, उसको हटा देना है फ्रॉम द डायरेक्ट स्पीच, कॉमा को हटा देना है, ठीक है। इंट्रोड्यूस द इनडायरेक्ट स्पीच बाय सम कनेक्टर लाइक दैट, इफ, वेदर। उसके बाद क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में कनेक्टर लगेगा, दैट, इफ, वेदर, व्हाट, वेयर, हाउ, वाई, एटसेट्रा। तो ये सब कनेक्टर यूज किया जाता है उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाने के लिए। और ज्यादातर कनेक्टर दैट का उपयोग होता है, कंजंक्शन का। ज्यादातर ये कनेक्टर दैट का उपयोग होता है जब इनडायरेक्ट स्पीच में हम कन्वर्ट करते हैं। जैसे मैं पहला सेंटेंस क्या बताया था, पहला सेंटेंस बताया हो, ही सेड आई विल गो टू द मार्केट। ये डायरेक्ट स्पीच है। अब इसको इनडायरेक्ट क्या कर कैसे करेंगे, देख लो बेटा। इसको इनडायरेक्ट कैसे करेंगे, ही सेड आई विल गो टू द मार्केट था, है ना, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। ही सेड दैट he would go to the market। हो गया, he said that he would go to the market। तो he said का he said रह गया, यहाँ that कनेक्टर आ गया, that कनेक्टर लग गया, और I will be changed to he, will be changed to would में बदल गया, बाकी सब वैसे ही है, ठीक है। He said that he would go to the market। Clear? So introduce the indirect speech by some connector। एक कनेक्टर हो गया, ठीक है, like that, if, whether, what, where, how, why।
एटसेट्रा, डिपेंडिंग ऑन वेदर यू वांट टू ट्रांसफॉर्म अ स्टेटमेंट। और तुम्हारे पे डिपेंड करता है, सेंटेंस को पे डिपेंड करता है कि तुम उसको एक स्टेटमेंट में रखना चाहते हो, क्वेश्चन में रखना चाहते हो, क्वेश्चन है या रिक्वेस्ट है, एज द केस में भी। इंपेरेटिव सेंटेंसेस होगा तो उसमें कुछ और लगेगा कनेक्टर, क्वेश्चन रहेगा तो कुछ और लगेगा, रिक्वेस्ट रहेगा तो कुछ और लगेगा, ठीक है। और सिंपल स्टेटमेंट है तो गो दैट लगेगा। तो सिंपल स्टेटमेंट है तो इसमें क्या लगा, दैट लगा, ठीक है। चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेंस कन्वेड बाय द स्पीच। जिस प्रकार से सेंस बनता है डायरेक्ट स्पीच में, उसी प्रकार से रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना है। रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसका डायरेक्ट स्पीच के अनुसार बदलना है, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब जैसे सेड है तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी सेड है। अगर सेड टू मी रहेगा डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब, हाँ, जिसमें ऑब्जेक्ट है मी, तो उसमें हो जाएगा टोल्ड मी हो जाएगा। धीरे धीरे सब बताएंगे हम, हाँ। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। You see here, fifth rule is to change from direct to indirect. Do not change the tense of the reporting verb. Reporting verb का tense को नहीं बदलना है, ठीक है। said है तो asked लिखा जा सकता है, said है तो asked लिखा जा सकता है। For example, he said, where will you go? एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन डायरेक्ट स्पीच का एक एग्जांपल दे रहा हूं जिसमें इंटरोगेटिव है, ठीक है। ही सेड वेयर विल यू गो। देखो बेटा ध्यान से, ये आज तुम लोग अगर ये पूरा देख लो कभी दिक्कत नहीं होगा तुमको स्पीच में, नहीं समझना बहुत जरूरी है। और वेरी सिंपल, इफ यू हियर अटेंटिवली, okay, if you listen to me attentively, you won't forget, okay. He said, where will you go? ये क्या है, ये डायरेक्ट स्पीच है। तो क्या बोल रहा है, do not change the tense of the reporting verb. टेंस क्या है यहां, कौन सा टेंस यूज हुआ है, V2, V2 हुआ है। सेट क्या है, V2 है, से सेट हुआ है, से क्या है, V1 है। तो ये पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस ही रखना है। क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट में, देखो ही आस्क्ड, इसको आस्क्ड कर दिया मैंने, ही आस्क्ड वेयर आई वुड गो, वेयर यू है, यू विल बी चेंज टू आई, वेयर आई वुड गो। He asked where I would go, ठीक है। that नहीं होगा, ठीक है। asked me लिख सकते हो, me भी लिख सकते हो, तुमको भी पूछ रहा है, भले he said to me नहीं है तो क्या हुआ, लिख सकते हो। he asked me where I would go, क्लियर हो गया indirect speech। तो if you remember the rules, construction, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन को याद रखो, किस प्रकार सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, हाँ, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए क्या क्या उसमें चेंजेस हो रहा है। मॉडल्स में चेंज हो रहा है, विल्स का वुड हो गया, हाँ, प्रोनाउन में चेंज हो रहा है, हाँ, फिर इसमें रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस में चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो चेंजेस देख रहे हो बहुत सारा, 5-6 चेंजेस करना पड़ता है। वो सारे रूल्स मैं बताऊंगा आराम से, ओके। See, convert all kinds of sentences into adjective statements. सभी sentences को adjective statements में बदल दो, adjective sentence में बदल दो। adjective मतलब क्या हुआ, adjacent statement में बदल दो। adjective sentence मतलब statement में बदल दो। तुम लोग types of sentences पढ़े हो ना, तो एक adjective sentences पढ़े हो गए, उस adjective sentences में बदल देना है, ये हो गया। मेक अदर नेसेसरी चेंजेस इन पर्सन, पर्सन में चेंज करना है, फिर पर्सन में भी चेंज हुआ है, पर्सन में चेंज होता है, वर्ब का फॉर्म्स में चेंज होता है, टाइम में चेंज होता है, प्लेस में चेंज होता है, एंड एक्सप्रेशंस में चेंज होता है। प्लेस जैसे हियर है, देयर में बदल जाएगा,
डायरेक्ट में हियर है तो देयर में बदल जाएगा, टाइम नाउ है तो देन में बदल जाएगा, ठीक है, यस्टरडे है तो द डे बिफोर हो जाएगा या द प्रीवियस डे हो जाएगा, ठीक है, टुमारो का नेक्स्ट डे हो जाएगा, ठीक है, ये सारे चीज मैं विस्तार से बताऊंगा, ओके। You see here changes in tenses, टेंस में जो चेंज हुआ है इसको देखिए ध्यान से। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है देखो, ठीक है। आई विल मूव अ लिटिल, सॉरी आई एम सॉरी, ये कट गया है बेटा, कोई बात नहीं है। Anyway, I will tell you, okay. So changes in tenses, टेंसेस में किस प्रकार बदलाव होता है। डायरेक्ट स्पीच विल बी चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट सिंपल विल बी चेंज टू पास्ट सिंपल। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो हम आप लोग टेंसेस में पढ़ाए हैं, तो सिंपल प्रेजेंट पास्ट सिंपल पास्ट में बदल जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस विल बी चेंज टू पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट सिंपल चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट, क्लियर। विल फ्यूचर एक जना का ठीक करो बेटा। See here, sorry for the disturbance. So you see here, so present continuous changes to past continuous, simple past changes to past perfect, present perfect changes to past perfect, okay. will future, will में जो future will जो रपत रहता है वो would प्लस bare infinitive में बदल जाता है, ठीक है। then you see can will be changed to could, have to will be changed to had to, imperative में जहां इंपेरेटिव सेंटेंस रहेगा वहां टू प्लस इंफिनिटिव हो जाएगा, ठीक है। टू प्लस टू इंफिनिटिव लिखा हुआ है, ठीक है, वहां इंफिनिटिव लगेगा। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ चेंजेस टू बी मेड व्हाइल कन्वर्टिंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, ओके। नाउ यू सी the rules of tenses. What are the general rules of tenses? क्या general rules है, okay. First you see simple present, दो बार simple लिखा गया है। simple present V1 changes to simple past V2, ये मैं अभी भी बताया, ठीक है। फिर से एक बार मैं विस्तार से बता दे रहा हूं। simple present जो V1 है, V1 क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लो गो हुआ, गो मानो V1 है, ए सिंपल पास्ट वेंट में बदल जाएगा, ठीक है, गो वेंट में बदल जाएगा, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट V1 चेंजेस टू सिंपल पास्ट V2, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आर चेंजेस टू पास्ट कंटिन्यूअस वाज वेयर। जहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहेगा डायरेक्ट स्पीच, वो पास्ट कंटिन्यूअस से बदल जाएगा। जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलोगे तो इज एम आर विल बी चेंज टू वाज वेयर, ओके। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट हैज, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज लगता है और हैव भी लगता है, या हैव नहीं दिया है, हैज और हैव लगता है प्रेजेंट परफेक्ट में, ओके। तो हैज हैव जो है
दैट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट हैड। जहां प्रेजेंट परफेक्ट की बात आएगी और उसमें हैज होता है, वो पास्ट परफेक्ट हैड में बदल जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जहां प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात आएगी, जहां हैज, हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन रहेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखो बेटा, जहां हैज और हैव बीन रहेगा, ये बदल जाएगा, चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन। ओके, ये हैड बीन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन में बदल जाएगा। तो ध्यान से देखना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन और हैव बीन लगता है, ये बदल जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में। जब बदलोगे डायरेक्ट स्पीच को तो वो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो क्या हो गया, हैड बीन। ठीक है, नाउ सिंपल पास्ट V2, सिंपल पास्ट जो V2 है, सिंपल पास्ट में अगर डायरेक्ट स्पीच रहेगा, सिंपल पास्ट में रहेगा अगर कोटेशन, ठीक है, दैट विल चेंज टू पास्ट परफेक्ट हैड प्लस V3। यहां पास्ट परफेक्ट हैड प्लस V3 लग जाएगा, जैसे हैड प्लस गॉन हो जाएगा। गो का V3 क्या आता है, गॉन। गो वेंट गॉन, देखो देखो बेटा, गो वेंट गॉन। ठीक है, तो गो क्या हो गया V1, वेंट क्या हो गया V2, ये हो गया V3। क्लियर, इज इट क्लियर टू यू? तो सिंपल पास्ट V2 चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट हैड प्लस V3। तो मैं एग्जांपल दे दी, हैड प्लस गॉन। ओके, now you see, this is perhaps the last slide in this class, part 2. Past continuous was where, past continuous जो was where दिया गया है, पास्ट कंटिन्यूअस जो was where दिया गया है, चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन। was where जो पास्ट कंटिन्यूअस है वो किसमें बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन में बदल जाएगा। was where जो दिया गया है हैड बीन में बदल जाएगा। क्लियर, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे स्पीच को। ओके, नेक्स्ट सिंपल फ्यूचर, सॉरी, पास्ट परफेक्ट हैड, पास्ट परफेक्ट हैड, पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है, हैड चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट हैड, कोई चेंजेस नहीं होता, इट रिमेन्स द सेम। जहां पास्ट परफेक्ट में डायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट में दिया रहेगा टेंस, वहां कोई चेंजेस नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट हैड विल रिमेन द सेम। ओके, देयर वोंट बी एनी चेंजेस इन टेंस। ओके, टेंस विल रिमेन द सेम, अनचेंज्ड। सिंपल फ्यूचर विल चेंजेस टू सिंपल फ्यूचर वुड। सिंपल फ्यूचर जो विल है, सिंपल फ्यूचर में विल हम लोग लगाते हैं, ये किस में बदल जाएगा, वुड में बदल जाएगा, लेकिन सिंपल फ्यूचर ही रहेगा। सिंपल फ्यूचर विल, सिंपल फ्यूचर वुड में बदल जाएगा। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस विल बी, अब देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस विल बी चेंजेस टू फ्यूचर कंटिन्यूअस वुड बी। फ्यूचर कंटिन्यूअस जो विल बी है, विल बी हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस में लगाते हैं, वो वुड बी में बदल जाएगा, वुड बी। अब देखो फ्यूचर परफेक्ट विल हैव, फ्यूचर परफेक्ट विल हैव जो है, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव लगता है। ठीक है, चेंजेस टू फ्यूचर परफेक्ट वुड हैव। फ्यूचर परफेक्ट विल हैव जहां है, और फ्यूचर परफेक्ट वुड हैव में बदल जाएगा। तो इस प्रकार से ढेर सारा चेंजेस होता है, और सारे चेंजेस मैं विस्तार से बताऊंगा कि प्रोनाउंस में कैसे होता है, मॉडल्स में कैसे होता है, वर्ब्स में कैसे होता है, हेल्पिंग वर्ब्स में कैसे होता है, टेंस में कैसे होता है, पर्सन में कैसा होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सब रहेगा, कैसे चेंजेस होता है। ये सारे चीज हम डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगा इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, आने वाले क्लासेस में हम आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स। I will come with a new topic of reported speech in the next class. Thank you.